إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرف کی تعریف بڑائی کبریائی حق و ثنا تعریف و توصیف صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. وہی اکیلا خالق، وہی اکیلا رازق، وہی اکیلا مالک، وہی اکیلا مدبر. اسی کے ہاتھ میں بیماری و شفا، موت و حیات. تو جب وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا مدبر ہے، اسی کے ہاتھ میں بیماری و شفا، موت و حیات ہے، تو ہم انسانوں کی عبادتوں کا واحد حقدار وہی ہے. سچی عبادت اسی کے لیے جائز و روا ہے. اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے اور باطل ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں ہی میں سے ان کے افضل ہونے، پاکیزہ ہونے کی وجہ سے چنا، ان تک پیغام پہنچایا، وہی پہنچائی کہ جس پر چل کر ہم انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جن نبیوں نے، جن رسولوں نے اللہ کی امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے واضح انداز میں پہنچا دیا. خصوصی طور پر سلام ان نبیوں کے امام، ساری انسانیت کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے کہ ہم حالت ایمان میں صحت کے ساتھ ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزار رہے ہیں. رمضان کی فضیلت آپ سن چکے ہوں گے. اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے احکام، اس کی فضیلت کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 4 سے 5 آیت ایک رکوع نازل کیا ہے سورۃ البقرہ. یہ روزے کیوں ہیں، یہ مجھ کو پسند ہیں، میں نے ان سے پہلے تم پر ہی فرض کیا، تم سے پہلے سارے لوگوں پر فرض کیا تھا، یہ کب سے کب رکھنا ہے، اور سارے احکامات. لیکن جب رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ نے کہا تو ایک نوٹ لگایا، کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، یہ گنتی کے دن ہے، گزر جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اور ایک وقت ہے اس سال کا جو رمضان ہے ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن آج رات ہم 10 روزے میں داخل ہو جائیں، ایک عرصہ گزر جائے. کامیاب ہے وہ لوگ
जो इस महीने को एक मकसद बनाकर, एक टाइम टेबल के लिहाज से पूरी प्लानिंग करके गुजारे। वरना अभी 10 दिन गुजर गए हैं, 10 दिन तक 10 दिन होगा फिर दूसरा असर हो, फिर आखिरी असर तो सबको मालूम है। मैं वहां पर देख रहा हूँ कि क़ियामुल लैल की तरावीह की नमाज का वक्त क्या है क्या नहीं, वो सबको मालूम है कि कैसे गुजर जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास वक्त है, अभी हमारे पास वक्त है। अगर हमने अभी से अहद कर लिया कि ये रमजान बस साल के दूसरे महीने की तरह ना हो, इस रमजान में अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में उतरे, अल्लाह से दुआएं करना मुझको पसंद हो, मुझे खुशी हो, यही असल मकसद है रोजों का। लअल्लकुम तत्तकून। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर गई, अल्लाह के लिए बड़ी से बड़े नेकी का काम करना आसान हो गया। अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह हमसे इतना ज्यादा करीब हो गया, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में ऐसे बस गई कि हाँ ये गुनाह छोड़ना मुझसे आसान है। यही है ऐसे रोजों का मकसद। लअल्लकुम तत्तकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये दिन भर रोजे रखने का मकसद तुम्हें सताना नहीं, तुम्हें तकलीफ देना नहीं, न तुम्हारी तकलीफ से अल्लाह को खुश होना है। हम हालत इस्लाम में हर मुसलमान ये चीज महसूस करता है, गुनाह करते उसको शर्म आती है, खुद दूर रहता है। नहीं मैं ये रमजान है, मैं रोजे से हूं, मैं क्यों गुनाह करूं? ये रोजा ढाल है, अशिया उजुर्ना। जैसा एक ढाल से आदमी सामने वाले के वार से बचता है, इस रोजे के हालत में गुनाह से बचते हैं। कितना रोजे से मैं हालत इस्लाम में, इस रोजे में मैं गुनाह करूं, ये मेरे लिए जायज नहीं देता, ये आयब है। यही कैफियत अगर हमारे अंदर और ज्यादा पैदा हो जाए, अल्लाह हमारे दिल में अहम बन जाए, अल्लाह के लिए बड़े से बड़े काम करा। जैसे हम फिर लोग रोजे से है, दूसरे दिनों में रोजा रखना मुश्किल होता है कि कैसे भूखे रहेंगे, लेकिन अब अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हम भूखे हैं, बीमार भी है, फिर भी हम रोजा नहीं छोड़ रहे, बहाना नहीं कर रहे, बोले कि नहीं ठीक है थोड़ी तकलीफ होती है हम रख लेंगे। यही मोहब्बत अल्लाह चाहता है रोजों के जरिए। अगर हम अभी से हद करें तो रोजे के मकसद को जानेंगे, खूब से खूब इबादत करेंगे। वो इबादत के सिर्फ फर्ज में आए और फौरन चले गए, ठीक है हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने सुन्नतें क्यों रखा? फर्ज से फर्ज से पहले आकर सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं, एक आदमी का मिजाज बन जाता है। सिर्फ फर्ज पढ़ के चले गए, अभी हमारा मिजाज बनेगा नहीं अल्लाह से दुआ करने का, अभी दिन अल्लाह से लगेगा नहीं, फिर फर्ज खत्म हो जाएगी वहां चले जाएंगे, इबादत का मजा नहीं आएगा। लेकिन फर्ज से पहले आ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अल्लाह से करीब होते जाएंगे। इस माहौल से, मस्जिद के इस मुबारक माहौल से और हम करीब होते जाएंगे, फिर फर्ज में मजा आए। फिर फर्ज सलाम पढ़ती फौरन जाना अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर बैठे जिक्र करें, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरती जाए। ये नमाज के बाद जो बैठना है, इसको शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि ये फ्री का माल है, क्योंकि हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक आदमी नमाज पढ़कर अपने मुसल्ले में बैठा रहता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह तू इसकी बख्श, इसकी माफी कर। कौन दुआ करे? फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, और वो माफी का मखलूक है, अल्लाह की दुआ कबूल करता है। तो शेख बिन बाज कहते थे कि आपको भी चाहिए कि नमाज के बाद मुसल्ले में बैठ रहे हैं, ये फायदे की चीज है, पता नहीं जिक्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन फरिश्तों से उसके लिए दुआ कर रहे हैं। ये कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत की चाहती, ये रमजान का असल मकसद है जो हम और फिर ये भी कि जो अल्लाह ने रोजे रखा है हम भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से खून का दौरानिया कम होता है, और खून का दौरानिया कम होने की वजह से शैतान के वसवसे भी कम होते हैं, फिर नफ्स अल्लाह की तरफ ज्यादा करीब होता है। फिर इस रमजान में अल्लाह ने हमें कुरान की तिलावत का मौका हुक्म दिया। उलमा इकराम ने कुरान और रमजान का ताल्लुक ये बताया है कि जब आदमी हालत सियाम में होता है, एक पाकीज़गी के माहौल में होता है, उसके जहन में गुनाह सवार नहीं होते, शहवात और रग़बतें उसके ज्यादा उस पर अटैक नहीं करती हैं। इस पाकीज़गी के माहौल में अगर वो अल्लाह के इस कलाम से जुड़ता है,
تو زیادہ قریب ہوتے اللہ کے کلام کی لذت، اللہ کے کلام میں تدبر، اس کو زیادہ نصیب ہو۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ آپ تراویح دیکھتے ہوں گے، حرمین کی تراویح کہ جو لوگ مناظر ہوتے ہیں، کیا امام صاحب کی قرات چلتی رہتی ہے، اور جو لوگ قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں ان پر کیا اللہ کی سکینت، اللہ کی رحمت، خوشی اور خضوع کا ایک منظر، یہی مطلوب ہے۔ اگر ہمیں حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم رمضان کے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جہنم سے چھٹکارا پائیں۔ وہ موقع دیتا ہے، موسم دیتا ہے عبادتوں کا۔ اللہ چاہتا تو رمضان نہ رکھتا، یہ الگ سے یہ دن، یہ روزے، یہ نمازیں اور یہ تراویح، یہ تلاوت قرآن اور یہ افطار کے مبارک مناظر نہیں رکھتا، لیکن اللہ دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ کیسے بھی موقع جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے۔ ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری عبادتیں کی ہیں۔ یہ تو یہ سیام، روزہ جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے خاطر انسان اپنی سب سے محبوب چیز کھانا پینا اس کے خاطر چھوڑ دے۔ اللہ کو ایک عبادت پسند ہے، جیسے مسلمانوں کے پاس عبادت زیادہ ہمیں دے رکھتی، بلکہ آپ مطالعہ کر لیجئے، ہر قوم میں روزے کی عبادت موجود ہے، چاہے وہ دوسری شکلیں اس کی نہیں ہو، دوسری شکلیں اس کی شرکت نہ ہو، لیکن ہر قوم روزہ مانتی ہے کہ اپنے خالق کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس کے خاطر بھوکے رہنا ہے، کھانا پینا چھوڑنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو قوم ہمارے ساتھ رہتی ہے اس میں بھی روزے کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ موسم۔ اللہ نے وہ عبادت وہ روزے کی عبادت سے فرض کرنا تھا، اللہ نے اس کو یہ رمضان کا مہینہ چاہیے۔ اس رمضان میں تلاوت کلام پاک، اللہ کے کلام سے جڑنا، اس کو سننا، اس کی تلاوت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام جب فرشتوں نے سنا تو اسے متاثر ہو گئے، جب جنوں نے سنا تو اس کو متاثر ہو گئے۔ بڑے بڑے کافر ابو جہل ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، اور پھر مغیرہ بن شعبہ ہو، جب نبی کریم سے بات کرنے کے لیے آتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے رک جائیے، آپ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناتے؟ صرف یہی قرآن سناتے، یہی قرآن سناتے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام جس کو سننے کے بعد وہ کچھ کہے بنا، کچھ کہے بنا، اس قرآن سے متاثر ہو کر، قرآن کی آیتوں سے متاثر ہو کر، قرآن میں بیان کی گئی حقائق سے متاثر ہو کر چلے جاتے رہے، اس میں کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہم اس قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں؟ 10 دن گزر گئے، کبھی ہم لگا کہ یہ جنت کا ذکر ہمیں اور مدد کرنا چاہیے، یہ جہنم کا ذکر چل رہا ہے، ہمیں جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ توحید کے مسائل بیان کرتا ہے کہ کس نے سورج بنایا، کس نے چاند بنایا، کس نے اس پانی کو تمہارے لیے بارش کے لائق بنایا، کس نے اس بارش سے یہ غذا، یہ تمہاری کھانے پینے کے لائق چیزیں بنائی۔ کیا ہمارے یہ قرآن پڑھ کر ہم اللہ سے قریب ہوئے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتری؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے یہاں تک کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن میں اتنی جاندار چیزیں، اتنی بہترین باتیں اور اتنے بڑی بڑی حقیقتیں بیان ہے کہ اگر پہاڑ کو بھی عقل ہو، پہاڑ کو بھی سمجھ ہو، اور پہاڑ ان چیزوں کو سمجھ لے جائے تو چور چور ہو جائے۔ وہ قرآن کی مواعظوں کے سامنے اپنے آپ کو برداشت نہ رکھ سکتے۔ کیا ہمیں ایسے محسوس کیا؟ کر سکتے ہیں۔ زیادہ زیادہ قرآن پڑھیں، صرف تلاوت نہیں، ترجمے کے ساتھ ترجمہ سنی، ترجمہ پڑھی، یا اگر قرآن سن رہے ہیں میرے موبائل میں، ہم ایسے قراءات ہے جو ترجمے کے ساتھ آتی ہیں، پہلے 5 آیت کی تلاوت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بھی کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اچھی چیزیں پیدا کی، اچھی آوازیں بھی پیدا کی۔ الحمدللہ میں بول نہیں سکتے کہ یہ جو موبائل ہے اس کو ہم نعمت کی شکل میں بدل سکتے ہیں۔ بہترین قراتیں ہیں، جیسے سنتے بیٹھے تو پورا 2-3 گھنٹے گزر جائے، ہم سنتے رہے۔ بہترین قراتیں ہیں۔ کوئی قرات چنے جو ہم کو زیادہ پسند ہے، ترجمے کے ساتھ سب کچھ کیا ہوا ہے، الحمدللہ، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی قراتیں جو ترجمے کے ساتھ آتی ہیں اس کو پڑھے،
अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे मुखातब है, क्या कह रहा है, हमको क्या पैगाम दे रहा है। ये महीना है उस महीने से करीब होने का। इस महीने में ये तरावीह की नमाज है, खुसूसी एहतमाम हमको कुरान से करीब होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरावीह जिसको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, लेकिन जब सहाबा का शौक देखा, सहाबा की इस तरावीह के लिए दिलचस्पी देखी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो रऊफ रहीम है, उनको डर हुआ कि सहाबा की दिलचस्पी कुरान के साथ, इस तरावीह की नमाज के साथ सहाबा का ये लगाव देकर कहीं अल्लाह ताला ये नमाज फर्ज न कर दे और मेरी बात में आकर उम्मत के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो तो फिर गुनहगार हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो रहमतुल लिल आलमीन थे, नबी सब रुक गए, लेकिन सहाबा किराम पढ़ते रहे। सहाबा किराम नबी वसल्लम देखते थे, सहाबा को देखते थे कि रमजान की रातें नबी वसल्लम तो नमाज नहीं पढ़ा रहे, लेकिन सहाबा किराम अलग अलग पढ़ रहे हैं। नबी वसल्लम देखते थे, मना नहीं किया। फिर हजरत अबू बकर का जमाना गया, गुजर गया, हजरत उमर का जमाना आया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नबी वसल्लम ने नमाज तो शुरू की थी, नमाज तो जमात के साथ शुरू की थी, फर्ज की डर से छोड़ दिया था, अब तो कोई फर्ज नहीं हो सकता, मैं इसमें मुझे हर्ज नहीं है कि मैं जैसे नबी वसल्लम ने जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ाई थी, इसको शुरू कर दूं। क्या हजरात आपको मालूम है उस जमाने में हमारे सहाबा किराम असलाफ जिनकी इब्तिदा पहले हुकूमत तरावीह कैसे पढ़ते थे? एक एक रकात में दो दो आयतें, एक एक रकात में दो दो आयतें पढ़ा करते थे। रिवायत में आता है कि इतनी लंबी रकात होती थी, लोग थकावट की वजह से आशा पे टेक लगा के खड़े रहते थे, लेकिन पढ़ते थे। वो उस वजह से अल्लाह के करीब, वो उस वजह से अल्लाह ने उनका नाम बुलंद रखा, उस वजह से हमें खुदा का हुक्म है। अगर हमें ये 1 घंटा और कभी पौना घंटा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये मौका गुजर जाएगा, फिर नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम जाया ना करें। दूसरे बहुत सारे काम हो सकते हैं 1 घंटे के बाद कर लिया जा सकता है। सुबह में अगर थोड़ी बहुत कुछ कोशिश करें तो काम हो सकता है, लेकिन वही नहीं कि उसी 1 घंटे में हम काम करें। वक्त है, अल्लाह ने मौका दिया है। ये फिर अगर आप रमजान गुजरने के बाद आप चाहें कि कोई हाफिज साहब नमाज पढ़ाए और फिर एक जमात हो, नहीं मिलेगा मौका। अल्लाह ने मौका दिया है, हम इसको गनीमत समझे, हम इसको गनीमत समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद और चालाक तो वो है जो अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखे, नफ्स की बात ना माने कि नफ्स को कह रहा है कि बाहर जाना है, नफ्स को कह रहा है कि ये गप्पे का टाइम है या फिर दोस्तों का टाइम है, नफ्स तो मानेगा। लेकिन अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखे, वह आने वाली माबाद मौत, और मौत की बात के लिए तैयारी, मौत की बात यही चीजें काम आएंगी। वल आजिज़ु मन इत्तबा हवा व तमन्ना अला अल्लाह। आजिज़ और बेवकूफ तो शख्स वो है कि पूरी तो नफ्स की पैरवी करे, नफ्स जो जो गुनाह बोल रहा है वो गुनाह से गुनाह करते रहे और अल्लाह से झूठी उम्मीद लगा के रखे, क्या अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह इतना देगा, अल्लाह उतना देगा। ये आजिज़ और बेकार किस्म के अशखास। हमें ये मौका है, अल्लाह ने रमजान दिया है, इसमें हमें नीति के कामों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये रमजान है, इसमें इफ्तार करना कराना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। ये सब मौके बाद में आएंगे नहीं आएंगे अल्लाह आलम। एक रमजान की खुसूसी बात जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के पहले दिन से तंबीह किया करते थे, रमजान के पहले दिन से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खुशखबरी देते हुए युबश्शिरु असहाबहु, इस रमजान की, इस माह मुबारक की खुशखबरी देते हुए खड़े हो जाते, कहते कि लोगों खुश हो जाओ, वो मुबारक महीना आ गया जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें शैतान जकड़ दिया जाता है। और कहते कि इस रात में अल्लाह ताला हर रात लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। इस महीने का मुकाम है अल्लाह के पास। और एक बात कहते कि फीही लैलतुन खैरुन मिन अल्फि शहर, इस महीने में एक रात है, इस महीने में एक रात है, उस रात की थोड़ी सी इबादत का अजर ये 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर दिया जाता है। नहीं, उम्मत मोहम्मद के अल्लाह का तोहफा, उम्र का उम्मत मोहम्मद की। पहले लोग
हजार हजार साल जीते थे, लेकिन इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला का तोहफा कि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, इस महीने में एक रात है, उस रात की थोड़ी सी इबादत का अजर 1000 महीनों की इबादत, यानी 83 साल 80 साल की इबादत से बढ़कर दिया जाता है। कहते मन हुरिमा खैरहा फकद हरिम, या लोगों इतना इतनी इतनी अल्लाह का इतना बड़ा इनाम आ गया, तुम उसको हासिल नहीं किए तो देखे तुम महरूम हो, तुम बहुत बड़े खैर से महरूम हो गए। ऐसा कि जैसे तुम्हारा दुकान जल गया, तुम्हारी औलाद जल गई, तुम्हारा घर जल गया, जैसे इतने बड़े नुकसान को जैसे तुम तस्वीर करते हो, ऐसे तस्वीर कि रात आए हम इबादत ना करें, हम नियत करें, हम नियत करें कि नहीं, हम इंशाअल्लाह जो आखिर अशर की जो ताकत है, हमारी कितनी भी मसरूफियत हो, हम उसको जरूर पाने की कोशिश करेंगे। रसूल ने बताने का मकसद हजरत उलमा इकराम ने फायदा बयान किया कि वो इबादत जो अफजल मौसम में की जाए उस इबादत से बेहतर होती है जो अफजल मौसम में न की जाए। यानी जो ये रमजान है अफजल महीना है, तो जो इबादत इस महीने में करते हैं वो इस इबादत से बेहतर है जो हम इस महीने का दावा करते हैं। और ये भी बयान किया कि जो इबादत हम हालत सौम में रोजे की हालत में करते हैं वो इबादत उस इबादत से बेहतर, रोजे की हालत की इबादत उस इबादत से बेहतर है जो हम गैर हालत सौम में करते हैं। तो इस वजह से इस मुबारक महीने की वजह से मुसलमान शुरू से एक जमाने से अपनी ज़कातें, अपनी माल की ज़कातें इस महीने में निकालते आए। एक तरीका रहा है, हालांकि ये चीज जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है, बल्कि ज़कात उस वक्त फर्ज होती है जब आपके माल पर एक साल फर्ज हो चुका, चाहे किस महीने में भी, चाहे किसी में रमजान में जरूरी नहीं है, जब फर्ज हुआ है निकालना है। लेकिन चूंकि मुकद्दस महीना है और हमारे उलमा किराम ने शुरू से लिखा है कि रमजान में सदका अफजल है, इस माने में कि इसमें लोग शुरू जमाने में इसमें जो गरीब लोग हैं या जो भी लोग हैं इसमें माल के ज्यादा मोहताज होते हैं, क्योंकि इसमें लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। या पहले ऐसा रहा होगा कि मुसलमान इस महीने में अपने सारे कारोबार अपने या फिर अपनी सारी दूसरी मौजूद छोड़कर इबादत में मशगूल होते थे। तो उस वक्त उलमा किराम इस बात पर ज्यादा तवज्जो दी कि आप रमजान में ज्यादा खर्च कीजिए, कि रमजान में लोगों को माल की ज्यादा जरूरत है। हजरत अभी जो वक्त बाकी बचा है, मैं इसमें ज़कात की ताल्लुक से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबको मालूम ज़कात ऐसी इबादत है कि जैसे हर मुसलमान बच्चे को मालूम है कि नमाज फर्ज है, ऐसे सबको मालूम है कि ज़कात फर्ज है। किसी को नहीं मालूम ज़कात वो इबादत है जिसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा मिम्मा उलिमा बिद्दीन बिज़रूरत, मिम्मा उलिमा बिद्दीन बिज़रूरत, दीन इस्लाम की ऐसी बात जो बच्चे बच्चे को मालूम है कि ज़कात फर्ज है। मतलब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दलाइल देने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ वजाहत कर देता हूं। जब इस्लाम आया, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज फर्ज की, सबसे पहले जो फर्ज की नमाज थी, बल्कि नमाज से पहले अकीदा, तौहीद, तौहीद सच्ची तौहीद, अल्लाह को हर चीज में अकेला जानना, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके कामों में और उसकी इबादत में, उसकी इबादत में अल्लाह को अकेला जानना। यहीं से इस्लाम शुरू होता है। 13 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की के दौर में यही बताते हैं, लेकिन कुछ अहम चीजें फर्ज हुई। वहां पर क्या हुई, मक्के में भी ज़कात का हुक्म नाज़िल, लेकिन ज़कात इस माने में नहीं कि जैसे 2.5% निकालना है, उस माने में नहीं, लेकिन खर्च करना है, खर्च करना है, आपको देना है। क्योंकि इस्लाम की बका, इस्लाम को आगे ले जाने के लिए किसी की बात की ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए कुरान में जब भी अल्लाह ताला ने जिहाद का लफ्ज़ कहा तो कहा कि सबसे पहले माल, नफ्स का जिक्र किया तो कहा कि सहाबा किराम जान से पहले अपना माल खर्च करते, क्योंकि जान की जरूरत पाए ना पड़े, लेकिन माल की जरूरत ज्यादा होती है, माल की जरूरत ज्यादा होती है। ये माल ना हो, मुसलमान इन मसाजिद के लिए, इन मदारिस के लिए और जो दीनी अहकाम, दीनी आमान है उसके लिए खर्च न करे, सब कंजूसी करके रखता रहे, तो फिर नहीं चले। दीन को जरूरत होती है माल की, इसलिए अल्लाह ताला ने जान से पहले माल का जिक्र किया कि वो मुसलमान अपने बकीली को छोड़कर
دین کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو جہاد بن مال یہ جہاد کی نفس سے مقدم ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کو عطا کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ ان بنیادی چیزوں میں سے, ہم تو جانتے ہیں زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے. رکن یہ جیسے دیوار پہ کی عمارت کھڑی ہے, دیوار نہیں ہوگی عمارت نہیں ہوگی, زکوٰۃ نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا, اسلام نہیں ہوگا, اسلام قبول نہیں ہوگا. یہ رکن ہے کہ اگر ہے تو پھر اسلام ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے. رکن کا مطلب یہی ہوتا ہے, وہ ہے تو پھر ہے. جیسے نماز میں سجدہ رکن ہے, کوئی آدمی سجدہ نہ کرے تو ہم بولے گے کہ نماز ہے, اس کی نماز ہوئی نہیں. ایسے ہی زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, یہ ہے تو پھر اسلام ہے, نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے. زکوٰۃ عظیم عبادت ہے. مطلب یہ آپ ایسا نہ سوچیں کہ بس مجھ کو اللہ نے فرض کیا میں دے رہا ہوں, یہ میرا حق ہو گیا. نہیں, یہ دینا عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے, ایسی زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ نے کہا قرآن میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو حکم ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں. اب وہ عبادت کیا ہے؟ یقین الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ. اللہ کی عبادت یہ ہے کہ نماز قائم کرے. پڑھنے کا لفظ نہیں ہے, قائم کرنا ہے پابندی سے. پابندی سے اس کے جو بھی شروط ہے, اس کے جو بھی ارکان ہے, اس کی جو بھی واجبات ہے, مستحبات ہے, اس کے اندر تو اللہ نے کہا کہ عبادت کرنا ہے. کہا کہ عبادت کا حکم ہے. عبادت کیا؟ کہا کہ نماز اور زکات. زکات ادا کرنا یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بس دینا ہے, دے رہا ہوں. نہیں, یہ عبادت, یہ دینا عبادت ہے. اس سے آپ کو اجر ملے گا. یہ عبادت ہے. پھر عبادت میں بھی کیسی عبادت؟ واجب عبادت کرنا ہی کرنا. کچھ عبادت ہوتی ہے کہ اگر نہیں کر رہے تو پوچھے نہیں جائیں گے, لیکن زکات یہ عبادت ہے تو واجب عبادت جو رکن کا مطلب ہے. قرآن اللہ نے کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, تو نماز قائم کرو, زکات تو واجب ہے, یہ امر کا حکم ہے, دینا ہی دینا ہے. آپ ایک چیز پر غور کریں گے, میں آیت کو پڑھتا جاؤں گا, لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ زکات کو نماز کے ساتھ جوڑا. ہم نماز کے بارے میں بہت یہ کرتے ہیں, نماز کے بارے میں ہمیں ذرا بھی شک نہیں. نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فرض ہے, یہ رکن ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے. لیکن کبھی کبھی زکات کے بارے میں تھوڑی کوتاہی, سستی یا کاہلی یا اتنا بڑا تصور نہیں ہے. لیکن اب سوچیں, غور کریں, جہاں اللہ نے نماز کا حکم نام دیا ہے وہاں پر زکات کا نام دیا ہے. یہ زکات نماز کی قرین ہے, ہم ذکر ہے. اللہ دونوں کو ملا کر کچھ بیان کرتا ہے. تو معمولی عبادت نہیں ہے, معمولی عبادت نہیں ہے. زکات کسی کے ایمان کو جانچنے کی کسوٹی ہے. جس کو سمجھے جیسے نماز کو دیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے, ایسے ہی کوئی اپنی زکات ادا کرتا ہے تو مسلمان ہے, اس کی ایمان کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں, یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں, میری رسالت کا اقرار کر لیں, نماز ادا کرنے لگے اور زکات دیں. یہ چار کام کریں گے, میں ان سے کوئی پرواہ دوں. کون جو آدمی یہ چار کام کرے گا, جو قوم, جو قبیلہ, جو بستی یہ چار کام کرے گی, میں اس سے کوئی پرواہ روک لوں گا, میں ان پہ جہاد نہیں کروں گا, وہ مسلمان. تو صرف ان کو اسلام چاٹنے کے لیے رسول نے کہا کہ ہاں اور اللہ کی وحدت پہ ایمان لائے, میری رسالت پہ اعتراف کر لیں, نماز پڑھیں. یہاں پہ بول کے نہیں رکے, بلکہ زکات کا نام دیا. کہ وہ زکات اگر نکال رہے اپنی مالوں کی تو وہ مسلمان ہے, تب وہ ان کا اسلام قبول کروں گا, ورنہ نہیں تو نہیں. پھر ان سے جہاد جاری رہے گا. اگر وہ زکات کا انکار کرتے ہیں, زکات کو نہیں مان رہے ہیں, تو پھر وہ مسلمان نہیں. آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانعین زکات سے جہاد کا علم ہوگا. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ قبیلے آئے تھے, کہتے کہ سب کر لیں گے, اسلام کا جو حکومت سب کریں گے, لیکن ہم سے زکات نہیں نکالی جاتی, ہم سے زکات نہیں نکالی جاتی. یہ جو 2.5% نکالنا ہے
इससे हमको क्या कर दीजिए, आप अलग कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या कहा था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने, वो तारीखी जुमला, वो शेर वाला जुमला कि लोगों तुम तो कह रहे हो कि ज़कात से तुमको मैं बरी कर दूं, ज़कात माफ कर दूं। अगर तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऊंट निकालते थे और ऊंट के साथ वो उसकी रस्सी, उसकी नकीब भी देते थे, अगर आप मेरे जमाने में सिर्फ ऊंट कह रहे हैं और वो नकीब नहीं कह रहे हैं, तब भी मैं तुमसे जिहाद करूंगा, मैं तुम्हारे ईमान को कबूल नहीं करूंगा। कितना गहरा जुमला है, कितनी गहरी बात है। बस एक बात हमें बताइए, जो शैतान ने हमको वसवसों में डाला हुआ है, हीरों में डाला हुआ है, इधर उधर की, इधर का माल उधर, उधर की माल उधर, ज़कात से बचने के लिए हजार बहाने। हजरात, ईमान की निशानी है ये इस्लाम, इज्तिमाई दीन है, सबको लेकर चलने वाला दीन है। गरीबों का हक है, उनकी अपनी जरूरतें होती है। अल्लाह सबका हक देना चाहता है, अल्लाह सबका हक देना चाहता है। और ये ज़कात कोई मामूली चीज होती है, कोई बहुत बड़ी चीज मांगी जा रही है, थोड़ी सी चीज। अब उसका हिसाब करके देखिए, उसका हिसाब करके देखिए, कभी निकाल तो लग रहा है कि बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन जो माल है उसकी इसमें इसको निकाल कर देखिए। किसी ने एक उसको करके दिखाया था प्रैक्टिकली, जैसे अगर ककड़ी के 10 टुकड़े किए जाए, एक ककड़ी लेकर उसके 10 हम पीस करें, 10वां पीस का चौथा हिस्सा, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन अल्लाह जो मांग रहा है हमारी मसलियत के खातिर, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह को माल की जरूरत नहीं है। अल्लाह पूरी कायनात, पता नहीं आपको अल्लाह पूछता है नचल फरमाने के अगर अल्लाह ताला पूरी कायनात को सिर्फ इंसानों की नहीं, इंसानों, जिन्नों, फरिश्तों और जितनी मखलूकात है, सब मखलूकात को उसकी मर्जी जो जो मांगे फिर वो सब कुछ दे दे। अगर एक एक आदमी बड़ा बड़ा पूरी सल्तनत मांगे, सबको सल्तनत अल्लाह ताला दे दे, तो अल्लाह के मांगने से इतना भी कमी होगा कि जितने बड़े समंदर में अगर सूद डुबोकर उठाई जा रही है। अल्लाह ये माल अपनी मोहताजी से नहीं मांग रहा है, ये हमारी अपनी भलाई की, हमारी अपनी भलाई। बखीली, कंजूसी ये बीमारी है, ये आयत है। आदमी को रहते हुए भी ऐसा करते कि मेरे पास नहीं है, ये बहुत बड़ा मर्ज है। इस मर्ज से अल्लाह ताला इसमें निजात दिलाता है। आदमी देगा, खुशी होती है, वो अपने आप से बड़ा बन जाता है। इसी को अल्लाह ताला ने कहा, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, कुल मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से ज़कात लीजिए। ये ज़कात इनको नफ्स की खबासतों से पाक करेगी, ये नफ्स की बखीली की बीमारी से इनको पाक करेगी, इनको ऊंचा करेगी। और आपको मालूम होगा, देने के बाद जो खुशी होती है उसका कोई तबदला हो सकता है क्या? आपकी वजह से एक की जरूरत पूरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल में खुशी महसूस होती है, आदमी अपने आप में बड़ा बन जाता है। वरना यही बखीली आदमी को करती है कि नहीं देना है, कल मुझे काम आएगा, मैं क्यों दूं। आदमी अपने आप में और कुछ शरीर होता है, खुद मोहताज होता है कि मुझे देना है, मुझे काम आएगा, मुझे काम आएगा। ये खुद यानी उसके पास होकर भी अपने आप को गरीब तस्वीर करता है। लेकिन आदमी देता रहता है, वो बड़ा बादशाह बन जाता है, उसका खुद नफ्स उसकी निगाह में बहुत बुलंद हो जाता है। यह है ज़कात का फायदा। ज़कात सिखाने के लिए नबी ने हुक्म दिया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ बिन जबल को भेजा था यमन, कहा कि देखो आप यमन जा रहे हो, वो पहले से अल्लाह पर ईमान रखने वाली कौम है, पहले से नबियों को मानने वाली कौम है, उनको जाके उनकी तौहीद की तजदीद करना, उनको ला इलाहा का मतलब समझाना। अगर उन्होंने इस तौहीद को मान लिया तो नमाज बदलाओ, नमाज को भी मान लिया, 5 वक्त की नमाज को मान लिया, तो ज़कात के अहकाम सिखलाओ, ज़कात को सिखलाओ को। यानी बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है कि जब हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत मुआज़ बिन जबल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं, तो 3 बड़ी चीजें सिखलाने के लिए कहा। उसमें ज़कात का भी हुक्म है। फिर ये बतलाना तो दुनिया है वो तुरंत दुनिया फिक्रा है, उनको बताना कि उनका माल उनके मादरों से लेकर उन्हीं के मोहल्ले के, उन्हीं के शहर के, उन्हीं के रिश्तेदारों के गरीबों को तकसीम किया जाएगा, कि जिससे माशरे में तवाज़ुन बरकरार रहता है, जिससे माशरे में एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती है। ज़कात वो चीज है कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बैठ लेते थे, वो अहम चीजें जब सहाबा से बैठ लेते तो
तो ज़कात का भी बात लेते थे कि आप ज़कात को लेना है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़कात एक बाब बांधी है, उसमें एक बाब है, बाबुल बैअ अला ईताई ज़कात। सहाबा से बैत की जाती थी कि अल्लाह ने तो मार दिया है तो आपको ज़कात निकालना है। इसमें नुक्ता समझ में आ गया आपको कि बैत किस चीजों में ली जाती है, हर चीज में नहीं, अहम चीजों पे, उन अहम चीजों पे ये ज़कात भी शामिल है। ज़कात के ताल्लुक से मैं आखिरी बात बोल के खत्म करूंगा कि अगर ज़कात रोक ली जाती है तो उसकी सजा दुनिया में, बारिश रोक ली जाती है, कहत पड़ जाता है, कहत पड़ेगा, मालदार भी गरीब की शक में आ जाता है। ये अल्लाह का बदला होता है, ये अल्लाह का इंतकाम होता है उन मालदारों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ऐसे हालात लाता है कि दोनों एक साथ में हो जाते हैं। तारीख ज़कात का हुक्म, कोई ज़कात अदा नहीं करता, हजरत इस्लाम में उनका बहुत भयानक अंजाम, बहुत ही भयानक अंजाम है। अगर चाहते हुए जानते हुए तो उसको मालूम है कि ज़कात इस्लाम का रुकन है, नहीं देता है, तो सारे उलमा इकराम ने बिल इत्तिफाक लिखा है वो काफिर है, इस्लाम का उसमें हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये रुकन है, ये रुकन है, ये है तो फिर इस्लाम है, ये नहीं है तो फिर इस्लाम नहीं है। अगर कोई ज़कात का मजाक उड़ाता है, ये कैसा कानून है, उसको अच्छा नहीं समझता है, तो उसके ताल्लुक से भी उलमा इकराम ने यही हुक्म लिखा है, क्योंकि अल्लाह की शरीयत का ये मजाक उड़ाना है। कोई आदमी जाहिल है, मालूम नहीं है, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको उसके दलाइल बताए जाएंगे। मैंने कुछ दलाइल आपको दिए, कुछ दौर हुक्म आए जिसमें अल्लाह ताला ने ज़कात को नमाज के साथ जोड़कर बयान किया है। मुख्य की वजह से नहीं करता है या कोता ही टाल मटोल कर रहा है, अगर इस्लामी हुकूमत है तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। बुखल की वजह से ये टाल मटोल करते हुए कर रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे अहकाम, इस्लामी अहकाम, इस्लामी हुकूमतों के अहकाम, फिक्र अक़वाल में आया है कि हाकिम को इजाजत है कि जो आदमी ज़कात नहीं निकालता वो उसके घर आकर जबरदस्ती उसे ज़कात लेगा और उसको सजा देने के लिए उसका आधा माल साथ में लेके जाएगा। यहां तक कहा गया अगर वो जल्दी नहीं मान रहा है तो हाकिम फौज लेकर, पुलिस को लेकर आ सकता है, उसकी जबरदस्ती उसूल की जाएगी, उसे तौबा करवाया जाएगा कि जो तुमने इस साल की ज़कात नहीं निकाली, गलत किया, हुकूमत के सामने, काजी के सामने तौबा करो। ये सब अहकाम तैयार किए गए हैं, ये इसलिए कि ये बहुत अहम चीज है, कोई सारी चीज नहीं कि दे रहे तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपने शौक से दे रहे हैं, या इसको दिए क्या उसको दिए क्या इसको, कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मामला बहुत खतरनाक है। क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा, कुरान की आयत अल्लाह ताला ने बयान किया, इन्नल लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कि जो लोग साहिब निसाब होते हुए भी, इसकी तफसीर में नहीं लिखा है, साहिब निसाब होते हुए भी इतना सब कुछ रखा हुआ, 1 साल से रखा हुआ है, इसकी इनको पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिनको जरूरत है उनकी बात नहीं चल रही है। आप जानते हैं ज़कात कब फर्ज होती है, इंशाअल्लाह सबको मालूम है, 1 साल से पैसा ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका पैसा अगर आप गरीब का हक नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। अल्लाह ने कहा कि इनको सख्त अजाब की खुशखबरी सुना, खुशखबरी सख्त अजाब की, यानी ये अल्लाह ताला उनको चिढ़ा रहा है, अच्छा झूला नहीं है। इतना सब कुछ है कि इनकी जरूरत से ऊपर, इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत में पैसे नहीं आते, इनकी जरूरत से ऊपर रखा है, फिर भी खर्च नहीं करते, इनको सख्त अजाब की खबर दो। क्या होगा, यही मार कर जहन्नम में जलाकर इनकी पेशानियों को, इनके आजू बाजू को, इनकी पीठ को इससे दागा जाएगा, खतरनाक लहर से जाएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, तो अल्लाह उनको कहेगा फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, कल बचा के रखे थे, कल बचा के रखे थे, यही माल आज तुमको डस रहा। इसकी वजाहत हदीस में आई है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस कि अल्लाह ताला इस माल को खतरनाक जहरीले गंजा सांप, खतरनाक जहरीले गंजा सांप की शक्ल बनाएगा, जिसके 2 आंखें, 2 नुक्ते होंगे जैसे दुनिया में सांप के होते हैं, वो उसको डसेगा, वो उसको डसेगा। आदमी कहते रहेगा क्यों डस रहे हो, वो कहेगा कि आना कंज़ अना माल, मैं तेरा पैसा, मैं तेरा माल हूं, जो तूने दुनिया में जो ज़कात का हक अदा नहीं किया था, आज उसकी वजह से तुझको सजा दी जा रही है।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کچھ دیا ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہے تو اس میں سے ہم کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، یا پھر اگر ہم صاحب نصاب نہیں ہے، جتنا کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بار بار خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنے قریب کر لے، اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واکبر۔